Good morning, all the students of class ninth. Today we will continue with our previous chapter, structure of atom. The last class we were discussing about Bohr's model, and what is atomic number. Okay, what is atomic number? Today we will continue with our next topic. What? First one is mass number. So what is mass number? या फिर how we can define mass number? Okay, या फिर we will write the definition of mass number. So first of all, the sum of mass number may be defined as, बोल सकते हो mass number may be is defined as what? Mass number may be defined as the sum of the total number of protons. That means what? Total number of protons and neutrons in the atom. The sum of total number of protons and total number of neutrons. Total numbers of neutrons in the atom of an element is known as mass number. इसको लिख सकते हैं कि definition क्या लिख सकते हो? The sum of protons, total number of protons. Simply लिख सकता है the sum of, listen, the sum of the numbers of proton and neutrons in the atom of that element is known as mass number. Yeah, you can simply write that what? The sum of total number of protons and total number of neutrons in the atom of that element is called, या फिर is known as mass number, या फिर is called mass number. Is called mass number और या फिर is mass number. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो. Simply we can write, read the definition, कि the sum of the number of protons and neutrons in the atom of that element is known as mass number. In the atom कहने का मतलब suppose that oxygen atom, तो oxygen हो जाएगा, oxygen atom, तो oxygen element का oxygen atom, okay, या फिर नाइट्रोजन या फिर कार्बन या फिर सल्फर, जो भी हो. Next, okay, कि mass number is generally represented by the letter of A, capital A, या फिर mass number is denoted by DENOTED, denoted by what? Capital A. तो ये capital क्या गया? symbol SYMBOL, symbol of what? mass number. तो mass number को हम लोग क्या बोलते हैं? atomic mass. Mass number is also known as atomic mass. Okay, तो atomic mass what? is represented by the capital letter of A. कैपिटल लेटर A के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड पॉइंट इज दैट कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, या फिर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ATOMI, एटॉमिक मास. ओके, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट या फिर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ऑब्वियसली इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू व्हाट? अब सपोज करो नहीं कि मास नंबर या फिर एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर A. It is denoted by what? Capital letter A. So it should be equals to what? Number of protons. So protons, P is the symbol of protons, and what? N is the symbol of neutrons. So obviously we can mention that the atomic mass should be equal to the sum of number of protons and number of neutrons in the atom of that element. So we can mention that finally atomic mass, ATOMIC, atomic mass, that means what? A should be equals to what? P plus N. ओके, तो इस सपोज दैट कि एटॉमिक मास इज गिवन, अब P निकालना है तो P इक्वल्स टू व्हाट? A माइनस N. अब सपोज दैट N निकालना है तो A माइनस P. ओके, अब किसी एलिमेंट्स में, कोई सा भी एलिमेंट्स है, दैट मीन्स व्हाट कि नंबर, अब आपको अगर एटॉमिक मास गिवन है, अब सपोज दैट कि व्हेन द एटॉमिक मास इज गिवन ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट, तो क्वेश्चन इज दैट कि यू हैव टू फाइंड व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो सिंपल सा लॉजिक है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं व्हाट? कि A इक्वल्स टू व्हाट? P प्लस N. तो P इक्वल्स टू व्हाट? A माइनस N, और N इक्वल्स टू व्हाट? A माइनस P. ओके, नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. लास्ट क्लास में एक्चुअली आई टोल्ड यू, या फिर आई हैव एक्सप्लेन व्हाट कि व्हाट? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. Last class we were discussing about atomic number. Atomic number is denoted by what? Capital Z. Okay, atomic number कि ATOMIC, atomic number is denoted by capital Z. Capital Z what? It's a symbol of atomic number. A representation of the element. Representation of an element. अब किसी भी elements को हम लोग कैसे represent करेंगे? तो atomic number of an element is mainly denoted by Z. Okay, तो atomic number of an element is usually denoted by Z. Actually I told you last class. Okay, and mass number of an element is represented by what? Capital A. अभी आपको बताया हमने कि मास नंबर को हम लोग इसे डिनोट करेंगे या फिर एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A, एंड व्हाट? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. तो A और Z हो गया.
तो दे आर रिप्रेजेंटेड अलोंग विथ द सिंबल ऑफ सपोज दैट कि x इज द एलिमेंट। अब सपोज करो हमने ले लिया एग्जांपल कि x इज द एलिमेंट। अब ये x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ओके etc कुछ भी हो सकता है। जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है वो इसमें से कोई सा भी हो सकता है। व्हाट एट द प्लेस ऑफ x, तो मान लेते हैं ये x प्लेस पे कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम etc एट द प्लेस ऑफ x। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको शो करना है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, इफ यू हैव सीन दैट पीरियोडिक टेबल, ओके, तो इन दैट पार्टिकुलर प्लेस you have you seen that what कि the all the elements can represented by in a symbol जिसको हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर यूज करते हैं, ओके और वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है मास नंबर और व्हाट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स व्हाट कि किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के थ्रू, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के थ्रू उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मतलब डिनोट करते हैं। अब सपोज दैट कि एक मास, अब सपोज दैट कि x इज द एलिमेंट, ओके, तो x इज द एलिमेंट एंड z x इज द एलिमेंट और z, तो z इज व्हाट एटॉमिक नंबर, z is the atomic number at that base and mass number a is the mass number, a is the mass number या फिर atomic mass that place above of the z। that means what इसका जो अपर पोर्शन है वहाँ पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को या फिर एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को, एंड एट द प्लेस ऑफ व्हाट उसके जो बॉटम प्लेस है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसको, एटॉमिक नंबर को। दैट इज द सिस्टमेटिक सिस्टम, दैट इज द सिस्टमेटिक सिस्टम या फिर बोलो इट्स अ मेथड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, okay, with their what along with what its mass number and atomic number, atomic mass और atomic number के थ्रू हम क्या करते हैं, इस तरह से सिस्टमेटिकली किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सपोज दैट लेट वी टेक एन एग्जांपल, सपोज दैट कार्बन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू व्हाट 6 एंड सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू व्हाट 6 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ सॉरी एटॉमिक मास ऑफ व्हाट कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू व्हाट 12। तो कार्बन कैन बी रिप्रेजेंट दैट, अब जो कार्बन जो एलिमेंट है, अब लुक एट दिस, एटॉमिक मास, ओके, एंड एटॉमिक नंबर, तो एट दैट बॉटम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू व्हाट, अब इट्स अ जेड और इट्स अ ए, एग्जांपल इट्स अ कार्बन एलिमेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब सपोज दैट कि एट द प्लेस ऑफ बॉटम क्या हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ एक्स वी कैन प्लेस सी, ओके, तो एट द प्लेस ऑफ जेड और ए, अब लुक एट दिस, सी इज द कार्बन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 6, व्हाट क्यों, जेड इक्वल्स टू व्हाट, जेड इक्वल्स टू व्हाट 6 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इक्वल्स टू व्हाट 12, इस तरह से हो जाएगा। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। अब क्लोरीन अगर ले लेते हैं, सपोज दैट क्लोरीन ले लो या फिर कैल्शियम ले लेंगे, सपोज दैट कैल्शियम, नहीं कैल्शियम इज एन एलिमेंट, नहीं विच इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे इसको रख दिया, नहीं एक्स यहाँ पे क्या है, इट्स एलिमेंट, एक्स यहाँ पे क्या है, ELEMENT एलिमेंट। अब जो भी एलिमेंट इसके प्लेस पे प्लेस करेंगे, अब लोग सी ए कैल्शियम, सी ए इज द कैल्शियम, अब कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, ओके, तो पे हम लिख देते हैं कि जेड इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 20 एंड ए इक्वल्स टू एटॉमिक मास इक्वल्स टू व्हाट 40, ओके, तो वी कैन रिप्रेजेंट कि 20 इज बिलो एंड 40 इज अबव। So that is the actual method to represent the element along with their what mass number and atomic mass or atomic number. Okay. Now the next topic is that determining the number of protons, electrons and neutrons is an atom. अब किसी एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड P, वी हैव टू फाइंड व्हाट नंबर ऑफ E एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ N। तो अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, द फ्रॉम एन एटम। अब मान लेते हैं फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम को अगर हम एग्जाम्पल पे ले लें, सपोज दैट वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल, we will take any example, okay, atom, so atomic number equals to what, as we know that what ATOMIC atomic number, so atomic number is Z, atomic number equals to what, atomic number should be equals to what कि number of protons plus number of atomic number equals to what, number of electrons plus number of protons। तो बोल सकते हैं कि atomic number equals to what कि number of protons, PROTONS protons, that means what P should be equals to what number of electrons, ELECTRONS electrons। That means what कि एटॉमिक नंबर, that means what Z should be equals to P equals to E, it's a formula। याद रखेंगे किसी भी एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। जितना दैट मीन्स जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होगा दैट मीन्स व्हाट इट्स एटॉमिक नंबर, इट्स एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। वो क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, एंड मास नंबर एज वी नो दैट, मास नंबर MASS मास नंबर, ओके, या फिर एटॉमिक मास ATO एटॉमिक मास, ओके, या फिर एटॉमिक मास, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स PROTONS प्रोटॉन्स प्लस number of protons, that means what, P plus number of neutrons, NEUTRO neutrons, that means a small n. So finally we can, that means what, mass number, so mass number is A, so this will equals to what, P plus n, and look at this, P plus n by the formula, okay, कि mass number equals to what, atomic mass बराबर what, number of protons यानी कि P plus number of neutrons, and that means n. तो symbolically इसको लिख सकते हैं what, कि A should be equals to P plus n, A should be equals to what, P plus n, okay, A should be equals to what, P plus n. अब look at this, अब look at this कि at the place of what, at the place of what, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके, ऐसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब लिसन, अब हम देखो Z और A के बीच में क्या कर सकते हैं। अब look at this, at the place of P we can put what, Z और E, ओके, at the place of P, तो अब लेते हैं putting PUTT and putting what, P equals to what, Z in equation 2। अब P इक्वल्स टू Z पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 2 पे, तो फाइनली कितना हो जाएगा कि A इक्वल्स टू व्हाट, Z प्लस n, A इक्वल्स टू व्हाट, Z प्लस n, ओके, Z प्लस n, दैट मीन्स व्हाट, कि एटॉमिक नंबर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एटॉमिक मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम क्या कर सकते हैं कि इट्स एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू व्हाट A, तो A शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, Z प्लस n, तो Z इज द व्हाट, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा, द सम ऑफ कर सकते द सम ऑफ व्हाट, ATOMIC एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, NEUTRONS न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे A शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अब लोग कर दिस, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो n शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, E माइनस Z, इट्स अनदर फार्मूला। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो यू हैव टू पुट दिस फार्मूला कि n शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, A माइनस Z। अब Z को क्या करेंगे, A के इक्वल टू के इस पार लाएंगे, तो A यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, तो A माइनस Z, ओके, A माइनस Z इज अनदर फार्मूला, A माइनस Z इज द अनदर फार्मूला। अब लुक एट दिस, अब सपोज दैट कि A इक्वल्स टू व्हाट, P प्लस n, ओके, P प्लस n। अब हम लोग क्या जानते हैं कि P शुड बी इक्वल्स टू E, ओके, तो A इक्वल्स टू व्हाट, E प्लस n। तो फाइनली अगर हमको E निकालना हो तो A माइनस क्या करना पड़ेगा, इट्स n होना करेगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, n निकालना हो तो इट मीन्स व्हाट, A माइनस E करना पड़ेगा। दीज आर द फार्मूला, ओके। अब इससे तुमको न्यूमेरिकल्स पूछेगा, नहीं कि सपोज दैट इन अ क्लोरीन, ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू व्हाट, एटॉमिक मास इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू व्हाट, एटॉमिक मास माइनस व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब सिंपल सा एग्जांपल लो, अब एक क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ सोडियम एटम, अब एग्जांपल क्या कह रहा है, इजी, ओके, सोडियम एटम, दैट मीन्स व्हाट, Na, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ ELECTRON इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, दैट मीन्स P, E एंड N। आपको 3 चीज कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट व्हाट, कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इक्वल्स टू व्हाट, 11, ओके, एटॉमिक नंबर ATO, एटॉमिक नंबर ऑफ Na इक्वल्स टू व्हाट, 11। उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू व्हाट, एटॉमिक नंबर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 11, ओके, एंड एटॉमिक मास ATO, एटॉमिक मास, ओके, तो एटॉमिक मास यू हैव टू रिमेंबर आल्सो 23, ओके। तो नाउ वी हैव टू वैल्यूज व्हाट, कि एटॉमिक नंबर दैट मीन्स वैल्यू ऑफ Z एंड वैल्यू ऑफ E। नाउ तो एस्कोरियम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हाट, A यानी कि Z और A, तो दैट मीन्स व्हाट कि सोडियम हो जाएगा अभी कितना, कैसे हो जाएगा कि Na इट्स 11, इट्स 23, ओके,
इट्स 11, इट्स 23। तो अब हमको ए का वैल्यू मिल गया और हमको जेड का वैल्यू मिल गया। तो फाइनली वी कैन प्लेस दिस फार्मूला। ओके, ए इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन, ए इक्वल्स टू पी प्लस एन। ओके, पी इक्वल्स टू जेड, एन इक्वल्स टू जेड माइनस 1। ओके, तो वी कैन यूज दिस फार्मूला। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो एज वी नो दैट ए इक्वल्स टू व्हाट, पी प्लस एन। ओके, ए इक्वल्स टू व्हाट, पी प्लस एन, या फिर इस फार्मूला को यूज कर लो, इस फार्मूला को यूज कर लो कि एन शुड बी इक्वल्स टू ए माइनस जेड, एन शुड बी इक्वल्स टू ए माइनस जेड। अब लुक एट दिस, अगर आप इस फार्मूला को यूज करते हैं, अगर आप ये फार्मूला को यूज करते हैं तो देयर इज टू अननोन। यहाँ पे क्या दो अननोन है, कौन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वी डोंट नो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्चुअली वी डोंट नो। इस फार्मूला को तो यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से दो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो दो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा व्हाट, जेड, तो जेड शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लुक एट दिस, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू व्हाट, 11। ओके, 11 इज द एटॉमिक नंबर। तो नाउ द आंसर इज कि जेड शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, पी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इफ दिस विल बी इक्वल्स टू 11 इज द फर्स्ट आंसर। नहीं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 11 इन अ सोडियम। सोडियम एटम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन से और 11 प्रोटॉन से। नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन से 11 प्रोटॉन से है। ओके, अब हमको एन निकालना है। नाउ वी कैन यूज दिस फार्मूला। ओके, कि एन शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस जेड। ओके, अब पुट कर दो, तो ए कितना है, 23, 23, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 23, इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। ओके, तो ए माइनस जेड, तो 23 माइनस जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इक्वल्स टू व्हाट, 11। आप जेड के प्लेस पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, पी ई कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल आर इक्वल टू व्हाट, 11। नाउ 2 12, ओके, 12 NUNEUTRONS। ओके, तो फाइनली वी कैन राइट द आंसर। तो देयरफॉर P इक्वल्स टू 11, ओके, E इक्वल्स टू व्हाट, 11 एंड N इक्वल्स टू व्हाट, 23 इज द आंसर, इज द आंसर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, तो फाइनली we have finished this chapter, we have finished this topic electronic, and next class we will continue with our chapter electronic configuration and isotope balances पढ़ेंगे, isobar isotopes पढ़ेंगे, और फाइनली दिस चैप्टर विल बी क्लोज। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो NCERT पे गिवन है आपको, तो प्लीज जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर विल हेल्प यू आउट, तुमको ये चैप्टर हेल्प करेगा केमिकल रिएक्शन में, किस पे, क्लास 10th में। नहीं, जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस जो है तुम्हारा, रासायनिक समीकरण, केमिकल्स इक्वेशन जो है तुम्हारा चैप्टर 9th 10th में, ये तुमको हेल्प करेगा, यहाँ पे वहाँ पे तुमको हेल्प करेगा। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, आफ्टर यूजिंग दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।